Hello everyone. Today I am going to speak on the topic the use of dialogue in meaning making. This topic is very important in literature, education, communication and even in our daily life. We speak every day. We talk to friends, teachers, parents, classmates, but have we ever thought how does talking helps us understanding things better? Is dialogue just conversation or it is something deeper? Today we will understand what is dialogue, what is meaning making, the relationship between dialogue and understanding, its role in education, its role in literature and drama, its role in society, practical examples and theoretical perspective. Let's us begin step by step. First one is what is dialogue? Dialogue means conversation between two or more peoples. But dialogue is not simply talking. It includes speaking, listening, responding, and thinking. True dialogue happens when both sides practical. For example, if one person keeps speaking and the other only listens silently without any interjection, it is not real dialogue. It is a speech. मतलब डायलॉग का मतलब क्या होता है जब दो पर्सन एक बोल ऐसा नहीं कि एक पर्सन बोल रहा है और दूसरा सिर्फ सुन रहा है तो उसे हम स्पीच कहेंगे वो डायलॉग नहीं बताएंगे हम उसे अगर एक दो मानो कॉन्वर्सेशन हो रही है उसमें दोनों साइड से ए भी बोल रहा है पहला इंसान भी बोल रहा है और दूसरा भी बोल रहा है तो उसे हम डायलॉग बोलेंगे अदरवाइज हम उसे स्पीच बोलेंगे उसे डायलॉग नहीं बोलेंगे Dialogue requires exchanges. In literature and drama, dialogue is written conversation between characters. In daily life, dialogue builds relationships. In education, dialogue supports learning. मतलब लिटरेचर में क्या होता है कि लिटरेचर में हम डायलॉग्स कैसे होते हैं तो कैरेक्टर्स दो या उससे भी ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे हैं उसके बीच में जो कन्वर्सेशन होती है उसे हम डायलॉग बोलेंगे डायलॉग इंक्लूड्स क्वेश्चन एंड आंसर एग्रीमेंट एंड डिसएग्रीमेंट clarifications and sharing opinion. So we can say dialogue is an interactive exchange or ideas that creates understanding. What is meaning making? Meaning making is the process of understanding something deeply. When we read poem, attend a lecture or exchange in something, we try to understand its meaning. But meaning is not always directly given. Sometimes meaning is hidden, complex, personal, contextual. For example, if someone says life is a journey, it does not literally mean walk on a road. We interpret it, we think, we connect it to our experiences. That interpretation process is meaning making. Meaning making involves thinking, questioning, reflecting, discussing, connecting ideas, and this is where dialogue becomes powerful. Third is relationship between dialogue and meaning making. Dialogue helps in meaning making in many ways. First one is clarification of idea. When we do understand something, we ask questions. For example, student said, "What is the meaning of this line?" Teacher said, "It means this." Through dialogue, confusion reduces. Without dialogue, misunderstanding remains. मतलब कि डायलॉग के थ्रू क्या होता है जो क्वेश्चंस होते हैं उसका हम क्लेरिफिकेशन कर सकते हैं हमें उसका आंसर मिल सकता है लेकिन अगर हम डायलॉग डिस्कशन ही नहीं करेंगे किसी टॉपिक को लेकर
तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो डायलॉग के थ्रू अपने टीचर से बात करके उसके साथ डिस्कस करके उसे सॉल्व कर सकता है। लेकिन अगर वो डिस्कस नहीं करेगा तो उसके मन में वो सोचेगा कि इसका मतलब ये होता है, तो उसके मन में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और डायलॉग के यूज से क्या होता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है। सेकेंड इज शेयरिंग perspectives. Every person has different background and experiences. When people discuss topic, they share different interpretations. For example, two students reading the same poem may understanding it differently. Through dialogue, they learn new viewpoint. मतलब क्या होता है, कोई दो स्टूडेंट्स है, वो कुछ भी पोएम पर है, दोनों को उसका मीनिंग अलग अलग समझ में आता है। मुझको अगर मैं अब कोई पोएम मैंने पढ़ी तो मुझे उसका मीनिंग कुछ अलग से समझ आया, मेरी फ्रेंड ने भी वही पोएम पढ़ी और उससे भी उसका मतलब कुछ अलग से समझ आया। अगर हम दोनों को उस पोएम का मीनिंग अलग अलग समझ में आया, अगर हम दोनों डिस्कस करेंगे, हमारे बीच में डायलॉग्स हो गए, वो मैं अपना ओपिनियन उसे बताऊंगी, वो अपना ओपिनियन मुझे बताएगी, तो क्या होगा, हम दोनों को नई इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसने जो समझा वो मुझे पता चलेगा और मैंने जो समझा वो उसे पता चलेगा। थर्ड वन इज क्रिटिकल थिंकिंग. डायलॉग क्रिएट स्पेस फॉर डिसएग्रीमेंट्स. व्हेन समवन challenges our idea, we think more carefully. This develops reasoning and analyzing. Meaning becomes thoughtful. अगर इससे क्या होता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बिल्ड होती है। कोई हमारा हमारा जो आइडिया है, हमारा जो ओपिनियन है, उसे चैलेंज करेगा कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा हम सोचेंगे। तो इससे क्या होता है कि हमारी थिंकिंग जो होती है वो ज़्यादा बढ़ती है, हम कुछ और ज़्यादा थिंकिंग कर सकते हैं। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग. डायलॉग इज नॉट ओनली लॉजिकल, इट इज़ इमोशनल. व्हेन समवन शेयर फीलिंग्स, dialogue helps us understand their emotional meaning. For example, if a friend say I am tired, through dialogue we may understand that they are mentally stressed, not physically tired. Dialogue helps empathy. इसका मतलब क्या होता है कि हम किसी को इमोशनली समझ सकते हैं। अगर कोई हमारा फ्रेंड है, वो आके हमें उसकी फीलिंग शेयर करता है, उसकी प्रॉब्लम्स बताता है, तो हम क्या है, उसे इमोशनली समझ सकते हैं कि इसके मन में क्या समस्या चल रही है, इसके मन में क्या चल रहा है। तो ऐसा डायलॉग के थ्रू हम किसी के इमोशंस को भी समझ सकते हैं। फिफ्थ इज कोलेबरेटिव मीनिंग. Meaning often create together in group discussion. Students build knowledge collectively. This is called collaborative learning. Dialogue is the base of collaboration. इसका मतलब क्या होता है कि अब ज़्यादातर स्टूडेंट साथ में बैठकर स्टडी करेंगे तो उसकी नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगी, वो ज़्यादा समझ पाएगा। इसलिए डायलॉग उसमें भी हमें हेल्प करता है कि हम किसी इंसान को ज़्यादा समझ सकते हैं, बातचीत से हम इंसान को समझ सकते हैं, उसके मन की फीलिंग्स को जान सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। अगर दो लोग डिस्कशन करेंगे तो आपस में नॉलेज बढ़ेगी। मुझे जो पता होगा वो मैं अपनी फ्रेंड को बताऊंगी, मेरी फ्रेंड को जो पता होगा वो मुझे बताएगी। तो इससे डायलॉग से ये भी हो। अब हम समझते हैं डायलॉग इन एजुकेशन. Dialogue plays a major role in education. In traditional teaching, the teacher speaks and students listen. But modern education encourages interaction. When students ask questions, uh, participate in discussion, debate, sharing opinions, learning become active. Dialogue in classroom improves understanding, builds confidence, develop communication skill, encourages independent thinking. फॉर एग्ज़ाम्पल, लिटरेचर का कोई क्लास चल रहा है और सिर्फ टीचर ही पोएम एक्सप्लेन कर रहा है और स्टूडेंट सिर्फ उसे सुन रहा है, याद रख रहा है, तो क्या होगा कि वो ज़्यादा सोच नहीं पाएगा और उसका थिंकिंग डेवलप नहीं होगी।
अगर क्या होगा, जो कोई टीचर पोएम समझा रहा है और उसका स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछेगा कि इस लाइन का मतलब तुम्हें क्या समझे, तो क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा सोचेगा और वो उसका मीनिंग भी जान पाएगा। फिफ्थ इज डायलॉग इन लिटरेचर एंड ड्रामा। Dialogue is the heart of drama. Without dialogue, there is no play. In literature, dialogue reveals character personality, show conflict, develops plot, expresses theme. क्या होता है, डायलॉग के बिना ड्रामा अधूरे है। अगर हम कोई ड्रामा प्ले कर रहे हैं, अगर तो उसमें क्या होता है, डायलॉग सबसे ज़्यादा ज़रूरी। डायलॉग के बिना तो वो ड्रामा हो नहीं पाएगा, इसलिए लिटरेचर में डायलॉग ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इन शेक्सपियर्स प्ले डायलॉग शो इनर थॉट्स एंड इमोशन। डायलॉग हेल्प्स द audition understand motivation, relationship, moral messages. It makes story realistic. Through dialogue, reader create meaning for character interactions. अब हम समझते हैं डायलॉग इन सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी। डायलॉग इज इम्पोर्टेंट फॉर सोसाइटी। In democracy, discuss help in parliament. Citizens share opinions. Through dialogue, problems are discussed, solutions are found, conflicts are reduced. If there is no dialogue, misunderstanding increases, conflict grow, society becomes divided. Dialogue promotes peace and understanding. अब क्या होता है, अगर हम कोई डिस्कशन ही नहीं करेंगे तो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो और भी बढ़ सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर किसी से के साथ हम हमारी प्रॉब्लम्स नहीं शेयर करेंगे तो हमारे मन में जो आएगा वही हमें सही लगेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है और सोसाइटी बिकम डिवाइडेड। उसका मतलब क्या होता है, अगर किसी के साथ हम बातचीत नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो हमारे मन में ना क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान को बुरा समझते हैं तो हमारे मन में ऐसा ही रहेगा कि वो बुरा है, बुरा है। फिर हम उससे बातचीत नहीं करेंगे, उसे बुलाएंगे नहीं, तो डिस्कशन नहीं करेंगे, तो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। वो लोग अपने तरह रहते हैं, हम अपनी तरह रहते हैं, इसलिए डायलॉग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर आता है प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। लेट्स अस टेक अ सिंपल एग्जाम्पल। टॉपिक इज सक्सेस। A said success means earning money, and B said success means become happy. Through dialogue, they discuss. Finally, they realize success has multiple meanings. Meaning was not fixed. It developed through conversation. This is meaning making through dialogue. अब क्या है कि अगर किसी को लग रहा है सक्सेस का मतलब पैसे कमाना, अगर हमने पैसे कमा लिए तो हम सक्सेसफुल हो गए, और किसी को ऐसा लगता है कि सक्सेस का मतलब होता है बिकम खुश रहना, तो अब वो लोग आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, तो उसके मन ए पर्सन के मन में वही रहेगा कि सक्सेस का मतलब है पैसा कमाना, और बी के मन में ऐसा रहेगा कि हैप्पी रहना। अगर उस दोनों में आपस में डिस्कस किया तो उन्हें पता चला कि सक्सेस के बहुत ज़्यादा मीनिंग होते हैं। अब है एडवांटेजेस ऑफ डायलॉग। डायलॉग बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग, encourages open mindset, develop confidence, strengthens relationships, improve communication skills, and promotes empathy. It transfers simple information into meaningful knowledge. अब क्या होता है कि डायलॉग से हमारी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। अगर दो लोग आपस में डिस्कस करेंगे तो उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स होगी कि वो ज़्यादा समझ पाएंगे, चीज़ों को ज़्यादा समझ पाएंगे, किसी भी सेंटेंस को या सिचुएशन को समझ पाएंगे डिस्कशन के थ्रू। अब हमारा माइंडसेट जो होता है ओपन होता है। इससे क्या होता है, अगर हम डिस्कशन करेंगे किसी के साथ तो हमारा माइंडसेट ठीक हो सकता है।
पहले के ज़माने में क्या होता था, लोग ज़्यादातर डिस्कशन नहीं करते थे और इससे क्या होता था, उसका माइंडसेट ऐसा होता था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और डिस्कशन के थ्रू क्या होता है, माइंडसेट ओपन होता है। कोई हमें समझाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, तो हमारा माइंडसेट ओपन होता है। हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप करता है डायलॉग। हग हम किसी के साथ हमें मानो, मतलब कि क्या, अगर मुझे कहीं बोलना है और मेरे अंदर स्टेज फियर है, मैं किसी के साथ डिस्कस करूंगी कि मुझे स्टेज पर बोलना है और मेरे अंदर जो स्टेज फियर है, मुझे डर लगता है, मैं स्टेज पर नहीं बोल पाती, तो मैं डिस्कस करूंगी किसी के साथ, तो वो क्या होता है कि मुझे बताएगा कि ऐसा नहीं होता है, मोटिवेशन देगा, और डिस्कशन के थ्रू ऐसा होता है, मेरा कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा। अब क्या है, मुझे ही पहले बहुत स्टेज फियर था, मैं स्टेज पर बोल नहीं पाती थी। फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन किया, उन लोगों ने मुझे मोटिवेशन दी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम तुम्हें अगर नर्वसनेस फील होती है तो तुम उसके सामने देखकर बोलो, जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, कुछ ऐसा होता है, कॉन्फिडेंस मिलता है उसके सामने देखकर कि ये इधर है, मैं बोल सकती हूँ ऐसा। तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है। अब कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ कॉलेज में अ वो था, एक शिविर थी, 3 दिन की शिविर थी। उसमें मुझे 3 दिन का मेरा एक्सपीरियंस बोलना था। मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता था, डर लग रहा था कि मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँ। मैंने पहले कई बार बोला है, लेकिन मुझे ऐसा डर-सा लगता था, कई नए लोग थे, मैं बोल पाऊँगी, नहीं बोल पाऊँगी। फिर मैंने मेरी सीनियर के साथ डिस्कस किया। उसने मुझे बोला कि तुम वहाँ जाओ और उसके सामने देखकर सब बोल देना, जिससे तुम्हें ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि नहीं, इस इंसान के सामने देखो कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब मैंने उसके साथ डिस्कस किया तो मैं उधर जाके बोल पाई। अगर मैंने डिस्कस नहीं किया होता तो मेरे अंदर वो स्टेज फ़ियर रहता, मैं उधर बोल नहीं पाती, ये ऐसा। इसलिए डायलॉग से आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और और क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ती है। आप बातचीत कर सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी से के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करते, क्योंकि वो डिस्कस नहीं करते कुछ भी। अपना जो अपनी प्रॉब्लम्स होते हैं अपने मन में रखते हैं, इसलिए वो ज़्यादातर किसी के साथ बोल नहीं पाते। उससे कम्युनिकेशन स्किल ऐसे नहीं होती, वो कहीं पे भी बोल नहीं पाते। अगर हम डिस्कस करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी so, in short, we understand that dialogue is more than conversation. It is a tool of understanding, a method of learning, a bridge between minds, a process of meaning making. Meaning is not created alone. It is created through interaction. Whenever we speak, listen, question, and response, we are build meaning. अब हम ये तो हमें समझ में आ गया हमें कि मीनिंग होता है वो ऐसे ही नहीं निकलता, किसी के साथ डिस्कस करेंगे, हमारे को कुछ सोच पाएंगे हम, तो उसका क्या है, मीनिंग आएगा। इन शॉर्ट, हमने ये समझ लिया कि डायलॉग से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लर्निंग बढ़ती है, हम कम्युनिकेशन स्किल हमारी बढ़ती है। So we can strongly say dialogue is essential in meaning making because it allows people to interrupt, clarify, reflect, and construct understanding together. Thank you.